مصر نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان طے پانے والا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے میں شمولیت پر سنجیدگی سے غور شروع کر دیا۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالطائی نے کہا کہ مصر کے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ تینوں ممالک کے ساتھ گہرے اور خصوصی تعلقات ہیں جو صرف سیاسی شعبے تک محدود نہیں۔ مصر شروع ہی سے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے سے آگاہ ہے۔ اس معاملے کا مصری ریاستی اداروں میں جامع جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ اس حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جا سکے۔ دفاعی معاہدوں اور ان سے جڑی ذمہ داریوں کے حوالے سے مصر کے آئین اور قانونی تقاضوں کے مطابق مکمل جائزہ لینا ضروری ہے۔ پاکستان تیزی سے کلیدی جغرافیائی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے، جبکہ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق پاکستان مختلف عالمی طاقتوں سے بیک وقت روابط کو اسٹریٹجک فائدے میں ڈھال رہا ہے۔ پاکستان امریکہ، چین، خلیجی ریاستوں، ایران سے تعلقات کو فعال خارجہ پالیسی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ واشنگٹن اور تہران کے براہ راست مذاکرات کی میزبانی پاکستان کی سفارتی اہمیت کی مثال ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات۔ وزیراعظم نے صدر مملکت کو یوم آزادی کی مبارکباد دی، مکہ امن معاہدے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت کا سیف افریقی معاہدے پر مؤثر عملی درآمد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ صدر مملکت نے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو سراہا۔ دہشت گردیوں کے خلاف کارروائیوں میں فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین۔ ملاقات میں وطن عزیز سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کا عزم۔ عسکری قیادت کی صدر مملکت اور وزیراعظم کے ساتھ شہدائے پاکستان کے اہل خانہ سے خصوصی ملاقات۔ یادگار فتح کی شاندار افتتاحی تقریب کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، صدر اور وزیراعظم پاکستان شہداء اور غازیوں کے اہل خانہ میں گھل مل گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شہداء کے لواحقین سے ملاقات میں واضح کیا کہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، صدر اور وزیراعظم پاکستان نے شہداء اور غازیوں کے اہل خانہ کی ثابت قدمی اور ملک کے لیے قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شہداء مارکہ حق کے لواحقین کے سروں پر دستے شفقت بھی رکھا۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کی دھمکی کام کر گئی ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم ڈیلرز کا منافع بڑھا دیا۔ حکومتی فیصلے کے بعد پیٹرولیم ڈیلرز نے ہڑتال ملتوی کر دی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC نے ڈیلرز مارجن میں ₹1.34 فی لیٹر اضافے کی منظوری دے دی۔ اضافے کے ساتھ ڈیلرز مارجن ₹9.98 ہو گیا۔ اس سے قبل پیٹرولیم مصنوعات پر ڈیلرز کا فی لیٹر مارجن ₹8.64 تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاکستان سول ایوارڈز کا اعلان کر دیا۔ 355 شخصیات کے ناموں کی منظوری۔ اسحاق ڈار، محسن نقوی، محمد اورنگزیب، احمد چیمہ اور بلال اظہر قیانی کو سول ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ ادارہ نشو بیگم، جبکہ گلوکارہ ترنم ناز اور اسٹیج اداکار افتخار ٹھاکر، اداکارہ ماریہ واسطی، جبکہ ثانیہ سعید اور اداکار محمود اسلم کی سول ایوارڈ دینے کی منظوری۔ سائنس کے شعبے میں کچھ شخصیات کے لیے اعزازات کی سفارش، جن میں سے انجینئرنگ کے شعبے میں صرف 2 افراد کے لیے تمغہ امتیاز تجویز، تعلیمی شعبے میں 21، طبی شعبے میں 10 شخصیات کے نام شامل، ادبی شعبے میں 29 شخصیات کے لیے اعزازات کی سفارش، کھیلوں کے شعبے میں 9 شخصیات کے نام شامل ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے مصری وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مصری وزیر خارجہ نے پاکستانی حکومت اور عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد دی۔ مصری وزیر خارجہ کا پاکستان کی امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ دونوں وزرائے خارجہ کا برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اعلیٰ سطح روابط اور ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ناروے کی وزیر خارجہ کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ پاکستان اور ناروے کے 2 طرفہ تعلقات کے فروغ، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ملاقات میں انسداد دہشت گردی، غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام، پولیس ٹریننگ اور میوچل لیگل اسسٹنس سمیت
मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अफगानिस्तान की सूरत हाल और वहाँ मौजूद गैरतन तंजीमों की सरगर्मियों के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी लाने के लिए पाकिस्तान के तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा। कराची से खैबर पाकिस्तान के 79वीं यौम आज़ादी का जश्न। लाहौर में वाघा बॉर्डर पर जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब। शुरका जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और नारे तकबीर की सदाओं से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों की शानदार परेड, दुश्मन पर हैबत तारी हो गई। इस्लामाबाद में 12 साल बाद यौम आज़ादी के मौके पर यादगार सिटी परेड में पुलिस स्क्वाड, ढोल पर परफॉर्मेंस, जबकि पाइप और परकशन बैंडर्स ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। ऊँटों के बैंड ने भी मुनफरिद अंदाज में परफॉर्मेंस पेश की। मारूफ फनकारों निमरा मोहरा, साहिर अली बग्गा और कुमारिया बैंड ने लाइव परफॉर्मेंस पेश की। शहरियों ने तारीखी और मुनफरिद गाड़ियों को खुसूसी दिलचस्पी से देखा। सिटी परेड में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शिरकत की। सिटी परेड के अख्ताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान के 79वीं जश्न आज़ादी के मौके पर कराची में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबंद कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स की जिम्मेदारी संभालते हैं। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर पाक बहरिया के एजाजी गार्ड्स में 2 दस्ते शामिल हैं। एजाजी गार्ड की तैनाती की तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर ने मज़ार क़ायद पर फूलों की चादर रखी और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद कराची पर हाज़री। मज़ार क़ायद पर फूलों की चादर रखी और फातिहा ख्वानी की गई। दोनों रहनुमाओं ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों के ख्वाब की ताबीर है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मज़ार क़ायद पर हाज़री के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि भारत की ललकार पर फील्ड मार्शल ने भरपूर जवाब दिया। कायद-ए-आज़म के उसूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तानी नौजवान खेल समेत हर मैदान में दुनिया में नाम बना चुके हैं। नौजवानों को साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की अजीम और लाजवाल कुर्बानियों का समर है। पाकिस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आज का दिन एक तारीख़ी दिन है। सिंध असम्बली ने सबसे पहले पाकिस्तान के हक़ में करारदाद मंजूर की थी। मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के आइन और सरहदों की हिफाजत करें। बैरूनी साजिशों के खिलाफ पूरी कौम हमेशा सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यौम आज़ादी पर वीडियो पैगाम। कहा कि आज़ादी से सरजमीन हासिल करने का नाम नहीं था, ये हुकूक का वादा था। ये वादा था पाकिस्तान के लोगों से, इन इलाकों से और रियासतों से जिन्होंने पाकिस्तान से जुड़ने का फैसला किया। हमने इस वादे को अपने आइन में लिखा, हम इसे बार बार दोहराते भी हैं। हमारी नस्ल का काम है 2048 तक इसे आइनी वादे को हर घर तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का सेफ स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट को हर सूरत तहसील और यूनियन काउंसिल तक ले जाने का ऐलान। मज़ीद 1500 पेन बटन जबकि नस्ब किए गए हैं। जबकि मरियम नवाज शरीफ ने यौम आज़ादी के मौके पर पंजाब इंटीग्रेटेड सेफ सिटी नेटवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रोशन चेहरों और जवान हिम्मत बच्चों को देख कर यकीन होता है कि पंजाब आगे बढ़ रहा है। ये कभी आँच नहीं आने देंगे। माजी में पंजाब के 70 से ज़ायद इलाके नो गो एरिया बन गए थे, जबकि अल्लाह ताला के फजल व करम से कच्चे समेत पंजाब का कोई इलाका नो गो एरिया नहीं।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की पाकिस्तानी कौम और अहले बलूचिस्तान को आज़ादी की दिली मुबारकबाद। कहा कि आज़ादी अजीम कुर्बानियों का समर है। हमारे बुजुर्गों ने जानों के नजराने देकर आज़ाद वतन हासिल किया। बलूचिस्तान में जश्न आज़ादी कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा वतन की अजीम शहदा की कुर्बानियों की कदर और एहतराम की निगाह से देखता है। कौम शहदा की अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार अरकान असम्बली के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी। कहा कि क़याम पाकिस्तान के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। यौम आज़ादी दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए तजदीद अहद का दिन है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफकार हमारे लिए मशअल राह हैं। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल और मुल्क की तरक्की की असल ताकत हैं। मजबूत, खुशहाल, फलाही और जमहूरी पाकिस्तान हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मज़ार कायद पर हाजिरी। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पर फूलों की चादर रखी, फातिहा ख्वानी भी की, मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की गई। कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को जो इज्जत मिली इस पर खुशी होती है। मोदी ने अरबों डॉलर लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया लेकिन वो नाकाम हो गया। मुल्क के अंदर अब सियासी इस्तेहकाम आ गया है। हमें मुत्तहिद होकर काम करने की जरूरत है। मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद कराची चलता है। इस शहर के लोगों ने इस मुल्क से मोहब्बत और इसकी खिदमत की है, जबकि हम काम कर रहे थे, हैं और करते रहेंगे। पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौके पर कोर कमांडर कराची की मज़ार कायद पर हाजिरी। कोर कमांडर कराची ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मज़ार इकबाल पर यौम आज़ादी की पुरवकार तक़रीबात। कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर लाहौर ने हकीम औलाद को अलामत को अल्लामा इकबाल को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़ और कैब खालिद अराई ने अहल खाना के साथ उम्रे की सादत हासिल कर ली। चेयरमैन खालिद अराई ने उम्रे की सादत हासिल करने के दौरान इबादत के साथ साथ मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की हैं। चेयरमैन खालिद अराई ने 14 अगस्त के मौके पर कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद भी दी। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़ खालिद अराई ने खाने काबा के सामने खड़े होकर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की है। इन्होंने पाक फौज के सरबुलंदी और हिफाजत के लिए भी दुआ की। चैनल 5 न्यूज़ के मरकजी ऑफिस में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब। मुल्क भर की तरह चैनल 5 न्यूज़ के दफातर में भी जश्न आज़ादी कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। कराची हेड ऑफिस में तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ। यौम आज़ादी की मुनासबत से केक काटा गया। तकरीब में चैनल 5 न्यूज़ की इंतजामिया, न्यूज़ रूम, MCR, PCR, IT, NLE और सोशल मीडिया टीम के अरकान ने भरपूर शिरकत की है। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। तकरीब में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर वतन से मोहब्बत और कौमी जज्बा नुमाया था। शुरका ने अहद किया कि वतन अजीज की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए अपना किरदार हमेशा जारी रखेंगे। कारोबारी बरादरी का GSP+ के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद। हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मुल्क की कारोबारी बरादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे अनासर के खिलाफ फौरी और मौसर इकदाम किए जाएं जो इस अहम तिजारती सहूलत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए GSP+ स्टेटस का बरकरार रहना नागुज़ीर है, क्योंकि ये मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। कारोबारी रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि GSP+ स्टेटस का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। कराची में नादरा एग्जीक्यूटिव सेंटर आयशा मंजिल का बाकायदा इफ्तिताह। नादरा NRC आयशा मंजिल से 20 से 25 लाख शहरी मुस्तफीद होंगे। ये ब्रांच हफ्ते में 6 दिन सुबह 8 बजे जबकि 3 बजे तक काम करेगी। इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी रुकन सिंध असम्बली सैयद आदिल असगरी समेत टाउन चेयरमैन कुरबैग नुसरतुल्लाह, डायरेक्टर जनरल नादरा
सिंध आमिर अली खान और नादरा के दीगर अफसरान ने शिरकत की। नए मरकज में शहरियों की सहूलत के लिए 4 वन विंडो काउंटर्स कायम किए गए हैं। शहरियों की सहूलत के लिए नादरा टेबलेट और सेल्फ सर्विस क्यूसेक मशीन भी नस्ब। लाहौर बादामी बाग और नवा कोट में एहलकारों को शहीद करने वाले दहशतगर्द बाप बेटा मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त रेहान भट्ट और फयाज भट्ट के नामों से की गई। दहशतगर्द फायरिंग के बाद एक सरकारी गाड़ी लेकर फरार हो गए थे। शेखुपुरा रावी रयान के करीब दहशतगर्द गाड़ी छोड़कर एक घर में दाखिल हो गए। दहशतगर्दों ने घर वालों को असलहे के जोर पर यरगमाल बना लिया। दहशतगर्दों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दो तरफा फायरिंग के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। मीर रजा कत्ल केस कराची में शहराए कायदीन पर शहरियों का एहतजाज। मीर रजा के कातिलों की गिरफ्तारी, वर्सा को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठाकर नारे बुलंद किए। मुजाहिरीन ने कहा कि जब तक मीर रजा को इंसाफ नहीं मिलेगा इस वक्त तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कराची में जश्न आज़ादी की खुशियां गम में बदल गईं। घग्गर फाटा के करीब तेज रफ्तार चिंची रिक्शे से गिरकर मासूम बच्ची जाबाहक हो गई। जाबाहक बच्ची की शनाख्त फातिमा आबिद के नाम से की गई। बच्ची अहल खाना के हमरा सैयद हसन शाह दरगाह से वापस आ रही थी। कराची के इलाके लांडी में वाटर टैंकर ने 4 साला बच्ची को कुचल दिया। हादसे में 15 साला लड़का जख्मी। जाबाहक बच्ची की शनाख्त 4 साला अनम उमर के नाम से की गई। हादसे में 15 साला अब्दुल रज़ाक जख्मी हुआ। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में ले लिया।